As you know, that SIDBI has recently released the notification for the recruitment of Grade A and Grade B officers. And I hope you must have gone through the eligibility video. And if you are eligible, then it becomes very, very important for you to understand the pattern of the examination. Because after going through the pattern, you will get to know how many phases are there, how many subjects are there, and how you can strategize those subjects to clear each and individual phases. So in this video, I'm going to tell you the pattern of this examination in detail. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the pattern of the SIDBI Grade A and Grade B 2025 examination for the general stream. So we'll start our discussion with phase 1 here. So in the phase 1, you will see 7 components are there: general awareness, reasoning ability, English language, quantitative aptitude, computer knowledge, MSME and the stream specific test. तो यहाँ पे these all are the 7 components जिसके थ्रू आप यहाँ पे phase 1 qualify करेंगे. Also number of questions, maximum marks as well as time is mentioned. सो जनरल अवेयरनेस में स्पेशल फोकस आपको रखना पड़ेगा टुवर्ड्स द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. सो यहाँ पे इस कंपोनेंट में 20 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 20 मार्क्स विल बी given to you. रीजनिंग की बात करें सो रीजनिंग में यू विल बी हैविंग 25 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स. इंग्लिश में यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स. Quant में you will be having 25 questions of 25 marks. Computer knowledge में you will be having 20 marks of 20 questions. Then MSME, policy, regulatory and legal framework, finance and management with focus on MSME में यहाँ पर इस component में you will be having 30 number of questions and the marks assigned is 30 only. Stream specific test भी होगा एक यहाँ पर where you will be having 50 questions of 50 marks, which means यहाँ पे 1 mark का एक क्वेश्चन होने वाला है. This is for sure. Total time allotted will be 120 minutes आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, which means 2 hours will be given to you. So 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर, विच मीन्स आपका जो फेज 1 है वो यहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है. And in the time span of 2 hours you need to attempt 200 questions, right? Further, let's see further details with respect to the phase 1 of the examination. तो यहाँ पर phase 1 की बात करें तो सारी streams के लिए phase 1 will be common, क्योंकि यहाँ पे stream specific test के नाम से basically यहाँ पे जो individual streams है उनके test यहाँ पर अलग होंगे. तो चाहे हम grade A की बात करें चाहे हम grade B की बात करें, phase 1 will remain same. फर्दर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे जो 7 कंपोनेंट्स है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्वालिफाइंग सेक्शन एंड द मेरिट सेक्शन. सो क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें सो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, दीज 4 आर द क्वालिफाइंग सेक्शन. मेरिट सेक्शन है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, देन आपका यहाँ पे एमएसएमई एंड देन फर्दर यहाँ पर है हमारा stream specific test. So 4 components are in the qualifying section, 3 components are in the merit section. But the most important thing is that shortlisting of the candidate for the phase 2 exam will be based on marks scored in the merit section only. इसका मतलब है जो आप जनरल अवेयरनेस में, एमएसएमई वाले कंपोनेंट में एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे they will only be considered for the purpose of the shortlisting of candidates for the phase 2 of the examination. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये क्वालिफाइंग सेक्शंस के कट ऑफ क्लियर नहीं करने हैं. यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ ऑल 7 कंपोनेंट्स. ठीक है, सारे ही 7 कंपोनेंट्स के आपको इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली 3 सेक्शंस ऐसे रहेंगे जो मेरिट सेक्शंस हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. मतलब इन 4 कंपोनेंट्स के नहीं किए जाएंगे, बट स्टिल यू हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ. इन 3 कंपोनेंट्स से किए जाएंगे अलॉन्ग विद द कट ऑफ इटसेल्फ. मूविंग ऑन टू द फेज 2 की तरफ बात करें जनरल स्ट्रीम की, तो जनरल स्ट्रीम में यहाँ पर ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए सेम ही पैटर्न है. ठीक है, सिलेबस भी सेम है ग्रेड ए और ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम के लिए. सो 2 पेपर्स आर देयर. पेपर 1 इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव होगा. यहाँ पे 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है. 75 मिनट्स विल बी असाइंड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 3. ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स का रहेगा एंड 75 मिनट्स विल बी गिवन टू यू. पेपर नंबर 2 इज बेसिकली यहाँ पे डिटेल में टॉपिक्स मेंशन है. यहाँ पे फर्दर इसको ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट में बाइफरकेट किया गया है. सो ऑब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव में यू विल बी हैविंग 75 मार्क्स. 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50, जिसमें 2 मार्कर्स भी होंगे और 1 मार्कर्स भी होंगे.
Similarly, when we talk about the descriptive, so descriptive will be of 50 marks. 50 मार्क्स के लिए आपको 75 मिनट्स मिलेंगे एंड उसमें आपको 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ओनली। मतलब 2 क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं एंड 2 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। दिस विल मेक द टोटल ऑफ 50। So you will be given 10 descriptive questions, but out of them you just have to attempt 4 questions, 2 of 15 marks and 2 of 10 marks. So this is how this will make the total of 50. सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें, सो यहाँ पे टोटल अगेन 200 मार्क्स का आपका फेज टू भी होगा। फॉर दैट यू विल बी हैविंग 3.5 आवर्स, ठीक है, 210 मिनट्स मतलब 3.5 आवर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर इस पूरे फेज टू को फिनिश करने के लिए। देन फर्दर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो फेज 1 से फेज 2 के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी बेसिकली यहाँ पर 1:25 के रेशियो में, ठीक है, 1:25। मतलब फॉर एवरी वैकेंसी 25 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो टोटल वैकेंसीज हैं उसके 25 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2। देन बात करते हैं फेज थर्ड, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की बात करें यहाँ पर, तो इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और ये जो 100 मार्क्स हैं इसमें फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपके पास कोई नोटेबल अचीवमेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, लाइक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन सर्विस, अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनका भी वेटेज इस 100 मार्क्स में ही इंक्लूडेड है। एंड काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर क्या मैं इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूं एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो यस, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। सो लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। इफ यू हैव अ स्किल, इफ यू हैव अ नॉलेज, देन डेफिनेटली यू आर हैविंग अ हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन हियर। So this is all with respect to the pattern of the examination, guys. And one very important thing for you, that we are running monsoon selection sale here, which is valid from 15 to 17th of July। 15 से 17 जुलाई तक ये वैलिड रहने वाली है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज में यू विल गेट डिफरेंट डिस्काउंट्स। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ग्रेड बी में यू विल गेट 55% प्लस 45% ऑफ, एंड दिस कोर्स यू विल गेट एट जस्ट 5499, 6+2 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ। बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, ठीक है। एंड रिमेंबर गाइज, 17th ऑफ जुलाई को ये सेल फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द आरबीआई ग्रेड बी कोर्स अलॉन्ग विद द 8 मंथ सब्सक्रिप्शन जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। बात करें एक और एग्जाम की, पीएफआरडीए, द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय पीएफआरडीए एंड फॉर द जनरल स्ट्रीम 28 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड। सो यस, दिस नोटिफिकेशन वाज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड, बट ये नोटिफिकेशन आ गया है एंड दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब दिस, क्योंकि जो वैकेंसीज है आज तक के हिस्ट्री में पीएफआरडीए ने इतनी ज्यादा वैकेंसीज जनरल स्ट्रीम के लिए नहीं रिलीज की हैं। सो यस, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, जिसको आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई मॉनसून सिलेक्शन सेल में आपका ये वाला कोर्स भी कवर्ड है, पीएफआरडी ग्रेड ए कोर्स। अगेन दिस कोर्स you will get at just 5133 with 8 months of subscription, but again for that you need to use the coupon code Prakash, ठीक है। दिस इज माई नेम एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड। इन दोनों ही कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं बिकॉज द सीजन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम हैज स्टार्टेड। पीएफआरडीए आ गया है, सिडबी इज देयर, आरबीआई आने वाला है, नबार्ड विल बी देयर, आईएफएससी इज एक्सपेक्टेड, आईआरडीएआई इज एक्सपेक्टेड, एनपीएस इज एक्सपेक्टेड। सो मल्टीपल एग्जाम्स आर लाइंड अप गाइज, नाउ इट इज योर टर्न किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं। द वेरी गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस एग्जामिनेशन इज दे आर हैविंग अ ह्यूज ओवरलैपिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सिलेबस बहुत है, तो अगर आप किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, राइट। एंड दिस इज द आरबीआई ग्रेड बी कोर्स, जहां पे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, एवरीथिंग यू विल गेट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सिमिलरली वी आर हैविंग द पीएफआरडी ग्रेड ए कोर्स एज वेल। सो गाइस, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करिए, यू विल बी डायरेक्टली इन टच विथ मी इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है तो। एंड ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज थ्रू विच यू विल गेट अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके थ्रू भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको जो भी क्वेरी आप मुझसे कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। एंड माय नेम इज प्रकाश एंड दिस इज द कूपन कोड दैट यू हैव टू अप्लाई टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, द सेल, द मॉनसून सिलेक्शन सेल
इज वैलिड टिल 17th जुलाई ओनली, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो आपने प्राइजेस देखे हैं वो सब यहाँ पे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।